हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट सेकंड। इन दिस पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स and how the metals are react with the other substance. Some reactions which are in our syllabus we are discuss one by one. First, reaction of the metal with the oxygen, air. What happen when the metal is react with the oxygen or air? And we know that metals are react with the part of oxygen, and it is also called oxidation reaction of metals, that means addition of oxygen, and formation of alkali oxide, that is basic oxide. When the metal react with the oxygen, when the metal react with the oxygen they or air to form the metal oxide, and which are basic in nature, that is they turns red litmus to blue. They turns the red litmus to blue, so they are known as alkali oxide or basic oxide. What is the general reaction? First of all, we remember the general reaction, then after that we are remember some specific case. When a metal react with the oxygen or air to form the basic oxide, it can form the basic oxide. Metal react with the oxygen or air to form metal oxide, which are basic in nature. First, the metal like sodium and potassium react vigorously with the oxygen at the room temperature to form the basic oxide. Vigorously means at the instantly. Vigorously means instantly, तुरंत react करने वाले. They form the basic oxide. For example, sodium react with oxygen or air to form sodium oxide. Potassium react with oxygen to gives the potassium oxide. Potassium and sodium are the very reactive metals, so they are stored in kerosene oil because they readily react with the oxygen. Most of the metal oxide are insoluble in water like ferric oxide and aluminum oxide. But some of the metal oxide are dissolved in water to form alkali solution or base. Sodium oxide dissolved in water to form strong base like sodium hydroxide. Then we say that metal oxide are dissolved in water. Not all, some metal oxide are dissolved in water to form the base. Like sodium oxide dissolved in water to sodium hydroxide. Similarly, potassium oxide dissolved in water to form potassium hydroxide, which is also a strongest base. Next is magnesium. Magnesium metal does not react with the oxygen at room temperature. It forms the magnesium oxide with burning in air by giving the heat to it. हम जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा कि मैग्नीशियम जनरली बड़े बड़े ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट दे कैन हीट और बर्न विद द एयर. ये जल जाता है और जल करके राख बन जाता है, दैट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड by giving heat to it. By combustion reaction they form the magnesium oxide. When the magnesium oxide partially dissolved in water form the base magnesium hydroxide. It does not completely dissolve in water because it is a weak base, so it is partly dissolved in water. Magnesium hydroxide will be formed. Next is aluminum metal. Aluminum metal burns in air to form aluminum oxide, that is amphoteric in nature. Aluminum को भी जलाना पड़ता है like a magnesium. एल्यूमिनियम इज बर्न एल्यूमिनियम ऑक्साइड. जब उसे बर्न करेंगे तो हमारा बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच शोज द एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट इन फॉर क्वेश्चंस. एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. क्या होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? द ऑक्साइड्स विच आर शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Aluminum oxide and zinc oxide are amphoteric in nature. When these amphoteric oxide react with the acid to form aluminum chloride and water, because at there this type of reaction is neutralization reaction and they behave as a base. When they react with the acid they behave as a base, and they react with the base they behave as a acid. Here it is behave as a basic oxide because react with the hydrochloric acid, form aluminum chloride and water. When aluminum oxide react with the base sodium hydroxide to form sodium aluminate and water. This is type of neutralization reaction. Here aluminum oxide behave as a acidic oxide. See, aluminum oxide react with the sodium hydroxide gives sodium aluminate and water. Similarly, zinc burns strongly in the air to getting zinc oxide. They also an amphoteric oxide. Zinc solid metal oxygen strong heating. Zinc oxide amphoteric oxide. When the zinc oxide similarly react with the acid, neutralization reaction, and behave as a basic oxide as well as sodium zincate formed and sodium zinc chloride is formed. Next is
कॉपर मेटल ऑल्सो फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग बट दे डू नॉट बर्न। ये जलने के बाद में पाउडर नहीं बनती है, जैसे मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का और जिंक का बन गया था, बट ये क्या करती है, उसी स्टेट में रहेगी, सॉलिड स्टेट में, बट डू नॉट बर्न। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, अगर कॉपर की वायर को जलाएंगे तो सॉलिड में ही रहेगी, हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाएगा, बेसिक कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर। आयरन इज ऑल्सो नॉट बर्न, आपने देखा होगा लोहे को लोहार गर्म कर लेता है लेकिन वो पाउडर नहीं बनता है, जलकर नीला हो जाता है, लाल हो जाता है। आयरन डू नॉट बर्न इन एयर बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग बट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड दैट इज नॉन फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। देखिए बेटा Fe3O4 बना कैसे, हमारे पास आयरन के 2 ऑक्साइड होते हैं, फेरस ऑक्साइड FeO2, और जब हम इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं Fe2O3 को, तो दोनों आयरन ऐड हो जाएंगे Fe3 और ऑक्सीजन सारे ऐड हो जाएंगे O4 Fe3O4 फेरस फेरिक ऑक्साइड कंबाइंड स्टेट। Next reaction is reaction of metals with water. How the metal react with water? When the metal react with water to form metal hydroxide and metal oxide and hydrogen gas. देखिए डिपेंड करता है कि वाटर की किस स्टेट के साथ रिएक्शन करती है। कुछ मेटल आपकी हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, कुछ मेटल आपकी ऑक्साइड बनाएंगी और रिलीज करेगी दोनों ही हाइड्रोजन गैस को। सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर देन दे गिव द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज फर्स्ट टाइप। General reaction, metal plus water, metal hydroxide plus hydrogen gas. Potassium and sodium metal react violently and vigorously with the cold water to form their hydroxide and hydrogen gas. सोडियम और पोटाशियम जैसी मेटल मोस्ट रिएक्टिव है नेचर में, तो ये तुरंत रिएक्शन करेगी कोल्ड वाटर के साथ में और हॉट वाटर के साथ में। जनरली जो कोल्ड के साथ करेगी वो हॉट के साथ तो करेगी ही करेगी। फॉर्म द हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस हीट। अब ये जो हीट रिलीज करेगी इतनी सफिशिएंट हीट होगी जो उसे ब्लास्ट करने के लिए सफिशिएंट हाइड्रोजन गैस को एक आपका इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करा सकते हैं। सो दैट्स वाई दे आर ब्लास्टिंग इन वाटर। कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बट दिस रिएक्शन प्रोड्यूस हीट नॉट सफिशिएंट टू बर्न इवॉल्व्ड हाइड्रोजन। अब ये ब्लास्ट नहीं होगी, ठीक है। कैल्शियम को जैसे वाटर में डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, बट ब्लास्ट नहीं होगा लाइक सोडियम और पोटाशियम बिकॉज the heat is not sufficient to burn the hydrogen and not provide the ignition temperature to the hydrogen. Next metal is magnesium. Magnesium does not react with the cold water but they react with the hot water and steam. First we are react with the hot water. When they react less reactive than calcium, so that's why it is happen. Magnesium react with the hot water, they can form the magnesium hydroxide and hydrogen gas. When the metal react with the steam टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। अब ये उससे लेस रिएक्टिव मेटल की बात है कि मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद द आइदर कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन। मैग्नीशियम मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद द स्टीम रैपिडली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगर मैग्नीशियम मेटल की बात करें तो स्टीम के साथ भी रिएक्शन करेगी और हॉट वाटर के साथ भी। स्टीम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी हाइड्रोजन गैस, बट हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नाउ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर इन द ऑर्डिनरी कंडीशन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ टफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन ऊपर से चिकने होते हैं, उसके ऊपर टफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। जिंक मेटल विद द स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Red hot iron metal react with the steam to form iron 2,3 oxide, ferrous ferric oxide or hydrogen gas. Fe solid plus water steam, ferrous ferric oxide and hydrogen gas. There is a apparatus system which can show। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो भी सैंपल हम यहाँ पे ले लेंगे, जो भी मेटल हमने लेनी है जिसको हीट करना है, यहाँ पे हम लेंगे ग्लास वूल सोक्ड विद वाटर जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्लास वूल जो हमारी थर्मस फ्लास्क वगैरह हम डालते हैं वो हमारी ग्लास वूल होती है। यहाँ पे 2 बर्नर लगाएं, एक से मेटल को हीट करेंगे, एक से हम ग्लास वूल को हीट करेंगे जिससे वेपर्स क्रिएट होंगे। और जो हॉट सैंपल में से जब वेपर्स क्रॉस होंगे तो आपकी रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से पास होगी और यहाँ पे आके आपकी गैस जार में इकट्ठा हो जाएगी और गैस जार में से हम उसे टेस्ट करेंगे बाय इग्निटेड इंसेंस स्टिक के साथ या बर्निंग कैंडल के साथ। तो हम देखेंगे पॉप साउंड के साथ वो बर्न करेगी।
जब ये गैस बाहर निकलेगी, टेस्ट ट्यूब गैस जार को ऊपर लेके जाएंगे तो उसके अंदर जैसे हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो बर्न विद पॉप साउंड के साथ आग पकड़ लेगी। Reaction of metal with the dilute acids. Third type of reaction, whether generally metal react with the dilute acid to form the metal salts and displace the hydrogen from acid to release hydrogen gas. We know that the metals, only those metal react with the dilute acid which are the more reactive than hydrogen, because they can displace the hydrogen from its salt solution. This is a type of displacement reaction. Only more reactive metal form the hydrogen and displace the hydrogen from dilute acids. Less reactive metal form the hydrogen like copper, gold and platinum do not displace the hydrogen from dilute acid because they are less reactive than hydrogen. Metal plus dilute acid, metal salt and hydrogen gas. It's a very easy acid base chapter में हम पढ़ चुके हैं. Sodium metal react violently with the dilute acids from the sodium chloride because sodium is more reactive than hydrogen. तो ये तुरंत रिएक्शन करेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी. सेम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगी, सोडियम सल्फेट बनाएंगे हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट क्वाइट रैपिडली, ये भी तेज करेगी बिकॉज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है ये, तो ये तुरंत रिएक्शन करेगी. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगी. एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड फर्स्ट स्लोली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. व्हेन फर्स्ट जब ये लेयर डिजोल्व हो जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तब देन रिएक्ट विद द रैपिडली. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा बट देयर कंपाउंड आर चेंजेस. नेक्स्ट इज जिंक मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. This reaction is slower than aluminum because zinc is less reactive than aluminum. Zinc, hydrochloric acid, zinc chloride and hydrogen gas. तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सेम होगा. आयरन मेटल रिएक्ट स्लोली विद द कोल्ड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा बट बना लेगा, लेट करेगा रिएक्शन. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करेगा. Copper metal do not react with the dilute acids because copper is less reactive than hydrogen, does not displace the hydrogen from salt solution. Next is question arises why the metals react with the dilute nitric acid does not give hydrogen gas. Reaction तो करती है dilute nitric acid पर, तो hydrogen gas release नहीं करती because nitric acid is work as a good oxidizing agent. Zinc plus nitric acid, zinc nitrate plus water, because nitric acid work as a strong oxidizing agent and they can react with ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड टू फॉर्म द वाटर. जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा. बट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल. यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो सबसे ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो क्या करेगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा. ये दो रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्योंकि एक एक्सेप्शन रिएक्शंस है. Next is aquaregia. What is aquaregia? Aquaregia is a freshly prepared mixture of the 1 part of the concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid. Aquaregia can dissolve the all metals in it. सारी मेटल्स को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है. Aquaregia contain 1:3 रेशियो ऑफ द नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक. एक पार्ट नाइट्रिक एसिड का, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं. इट इज़ यूज टू डिजोल्व द वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर. इसका यूज गोल्ड स्मिथ करते हैं गोल्ड को क्लीन करने के लिए. रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर, ठीक है. उन्हीं के बेस पे हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हेन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी डिस्प्लेस द बाय मेटल ए फॉर्म द सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी इज डिस्प्लेस्ड. सम रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड एंड मोर रिएक्शन वी आर स्टडीड इन चैप्टर फर्स्ट. जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. Iron displaces the copper from copper sulfate solution because iron is more reactive than copper. Copper displaces the silver from silver nitrate solution because copper is more reactive than silver. More example in chapter first. Next is reaction of metal with chlorine. What happens when the metal react with the chlorine? Metal react with the chlorine to form the ionic chlorides. These ionic chlorides are crystalline in nature. That means they are in the fixed shape compounds. These ionic chlorides are work as a electrolyte in aqueous state. जैसे ionic compound like sodium chloride है, वाटर में डालते क्या करेंगे, आयनाइज हो जाएंगे और वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइट. जनरल रिएक्शन मेटल प्लस क्लोरीन मेटल क्लोराइड्स. फर्स्ट सोडियम मेटल रैपिडली रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म. सोडियम सॉलिड मेटल जो है क्लोरीन गैस का रैपिडली रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा. कैल्शियम रिएक्ट विद द विग्रसली विद द क्लोरीन टू फॉर्म, ये भी करेगा, विग्रसली करेगा. रिएक्टिव थोड़ी सी हीट निकलेगी
कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग विद द क्लोरीन रैपिडली रेडली रिएक्ट विद द फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। हीट करने पर ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। एल्यूमिनियम हीटिंग करने पे बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। जिंक कंबाइन डायरेक्टली विद द क्लोरीन, ये डायरेक्ट कंबाइन कर जाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। तो डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट मेटल, बेटा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हमें याद रखनी है। आयरन मेटल हीट विद द क्लोरीन, इसको हीट करना पड़ेगा, फेरिक क्लोराइड बनेगा। कॉपर मेटल को भी हीट करना पड़ेगा क्लोराइड बनाने के लिए। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ द मेटल विद हाइड्रोजन। Most of the metal do not combine with the hydrogen. Only few reactive metal like sodium, potassium, magnesium, calcium react with hydrogen. तो हाइड्राइड बनाने के लिए सिर्फ 4 मेटल्स के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड। पोटाशियम प्लस हाइड्रोजन, पोटाशियम हाइड्राइड। जब मैग्नीशियम पास करेंगे हाइड्रोजन से हीटेड मैग्नीशियम को, तब ये हो जाएगा। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। Up to here the chemical properties of metals are done. I hope all you are understand the term and concept of chemical properties of metals. Thank you and have a nice day.